Now we will discuss the next concept. We have seen hybridization, the valence bond theory. Now the next concept that we are going to discuss is molecular orbital theory. There were certain drawbacks of valence bond theory. So we come up to molecular orbital theory, also referred as MOT. So VBT could not explain the magnetic property and the optical properties of molecules. It did not tell us about the bond strength, relative stabilities as well. So for further explanation, the next theoretical concept was put forward by Hunt and Mulliken. Hunt and Mulliken gave this theory based on the quantum mechanical model of atom. They considered the atomic orbital to behave like a wave, and this concept was being given. It tries to explain the molecules, the properties of molecule, like the relative strength, the bond strength, basically the magnetic nature of the molecules, and we will discuss specifically the MOT for a dimolecular substance. बाय डाई मॉलिक्यूल्स के लिए हम डिस्कस करेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अबाउट MOT. Now what does MOT suggest? MOT has few postulates. What are the theoretical postulates of this MOT? First point is that it tells us that atomic orbitals combine in a linear manner, in a linear combination. Atomic orbitals are combining in a linear manner to form new set of orbitals, and these new set of orbitals are called as molecular orbitals. So atomic orbitals combine to form new orbitals, and these new orbitals have different property as that of the atomic orbitals. These new orbitals are called as molecular orbitals. ठीक है, the molecular orbitals are energy states of a molecule. ये क्या है? मॉलिक्यूल का एनर्जी स्टेट. जस्ट लाइक atomic orbitals are the energy state of an atom. जिस तरह से एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं. ठीक है, so these are molecular orbitals are the energy state of a molecule, and electrons are filled in this molecular orbitals. So electrons are filled just like in atomic orbitals the electrons are filled. उसी तरह से molecular orbital में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, atomic orbitals have only one nucleus, but the molecular orbitals have more than one nuclei. एक से ज़्यादा nuclei present होते हैं, and the distribution of electron, this is one molecule, it has two nucleus, consider this H2 molecule, and the distribution of electron cloud is equal around both the nucleus. दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल होती है. जस्ट लाइक एक एटम में, एटम के सराउंडिंग में इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल में दोनों न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होगी. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन व्हिच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन. कहने का मतलब है 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s से कंपेयर ओवरलैप करेगा, बट 1s 2s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है, सिमिलरली 2px विल नॉट ओवरलैप विद 2py और 3py और 2px, क्योंकि शेप साइज अलग हो जाते हैं. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, only those atomic orbitals will combine to form molecular orbitals which have comparable energy and proper orientation. जब तक comparable energy और proper orientation नहीं है, तब तक combination possible नहीं है. जैसे 1s 1s के साथ ही overlap करेगा या combine करेगा, 1s 2s के साथ combine नहीं करेगा. ठीक है, so these are the basic 4 properties. Still properties are there, still there is theoretical concept.
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ molecular orbital, and when two atomic orbitals combine you get two molecular orbital. One is called as bonding molecular orbital BMO and the other one is called as anti-bonding molecular orbital ABMO. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं दो MO बन रहे हैं, एक BMO बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. The bonding molecular orbital are more stable than anti-bonding molecular orbital. These have low energy than anti-bonding. These are high energy. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं पहला बॉन्डिंग बनता है जिसकी एनर्जी कम है और फिर एंटी बॉन्डिंग बनता है उसका, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो कम स्टेबल होता है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा. बट एंटी बॉन्डिंग में हम जो भी ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो स्टार लगा देते हैं, पाई बॉन्ड बना रहा है तो पाई स्टार, डेल्टा बॉन्ड बना रहा है तो डेल्टा स्टार. सो वी पुट अ स्टार टू इंडिकेट दैट इट्स एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Now the last point is the filling of molecular orbital take place as atomic orbitals were filled. So it follows three basic rule. It follows Aufbau principle which states that when electrons are filled in a molecule they are filled in low energy molecular level to high energy molecular state. मतलब यानी कि वो molecular orbital पहले fill होगा जिसकी एनर्जी कम है और जिस तरह से एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल के अंदर फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी. दैट इज इट फॉलोज ऑफबॉ प्रिंसिपल. द सेकेंड इज इट फॉलोज पॉलीज प्रिंसिपल. पॉलीज प्रिंसिपल कहता है पेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका स्पिन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए. जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के होते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम में आएंगे एक ऑर्बिटल में एंड दीज शुड हैव ऑपोजिट स्पिन. सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विद ऑपोजिट स्पिन. द थर्ड पॉइंट इज हंस रूल. हंस रूल स्टेट्स दैट the pairing of electron in degenerate molecular orbital, the pairing of electron in degenerate molecular orbital does not take place until each molecular orbital has one electron in it. Degenerate molecular orbital में pairing तब तक नहीं होगी जब तक हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. So it follows the three rules that you were considering when you were filling the electron in an atom. एटम में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो जो रूल्स हमने लगाए वो सेम रूल मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे बट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा. सो इट फॉलोज ऑफबॉ प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हंस रूल. एंड द ऑर्डर, द एनर्जी ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इज एज गिवन बिलो. तो वन इज इट्स द सिग्मा 1s orbital that is filled up in a molecule, then sigma star 1s. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. 1s और 1s जब कंबाइन होते हैं you get two new orbital. One is bonding molecular orbital and the other one is एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे. दिस इज एंटी बॉन्डिंग. दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s. तो दो 1s ऑर्बिटल एटम के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे तो एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो यू गेट टू ऑर्बिटल सिग्मा 1s and sigma star 1s. तो sigma star 1s एनर्जी की ज़्यादा होती है as compared to sigma 1s. ठीक है. Then next is after 1s sigma 2s will have energy.
then sigma star 2s. After sigma star 2s, it's pi 2px and pi 2py. These are degenerate, both have equal energy. The bonding orbital of pi 2px and 2py have equal energy, and then it is sigma 2pz. Then you have antibonding of pi 2px and antibonding of pi 2py, and then sigma star 2pz. सो 2pz का जो एंटीबॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो 3p ऑर्बिटल थे 2px 2py 2pz. एक एटम में तीनों p ऑर्बिटल इक्वल होते हैं, बट मॉलिक्यूल में तीनों ऑर्बिटल इक्वल नहीं है. 2pz की एनर्जी, बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है सिग्मा पाई 2px और पाई 2py से, और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की ज्यादा कम है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2pz. सो दिस इज द ऑर्डर, एंड दिस ऑर्डर यू नीड टू लर्न. And this order is followed till nitrogen. From hydrogen to nitrogen, this sequence is followed where pi 2px, pi 2py have energy less than sigma 2pz. So sigma 2pz की energy till nitrogen it's higher, and this is very important that you need to know when you make the order. ये hydrogen से nitrogen तक follow होगा ये sequence. उसके बाद क्या सीक्वेंस है? इट्स सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन यू हैव सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड लास्टली सिग्मा स्टार 2pz. यहां पर आपको दिख रहा है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है पाई 2px और पाई 2py से, विच वॉज रिवर्स इन दिस केस. तो N2 तक सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है, बट N2 के बाद यानी कि फ्रॉम O2 टू neon 2 you need to consider this, that sigma 2pz has less energy as compared to pi 2px and pi 2py. Now why these have high energy, low energy? These are based on the mathematical calculations that you do in quantum mechanical model, and you get the sequence over there. ठीक है, तो वहां से आता है, complicated है, but you need to just remember the order, and with the help of the sequence you can fill the electrons. Now this order, if you know, you can fill the electrons and know the properties, that is how many bond is present between two atom in a molecule, वो हमें पता चलेगा, which is called as bond order. And mathematically we can find bond order. Bond order is half of the electron in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Nb represents number of electron in bonding molecular orbital, and Na represents the number of electron in anti-bonding molecular orbital, and the difference gives us BO, and this is called as bond order, that is the number of bond between two atoms in a molecule. So bond order is defined as half of the difference between the number of electrons present in bonding and anti-bonding molecular orbitals. So we can get the bond order if you know the molecular एनर्जी लेवल, हाउ इज इट बीइंग फिल्ड अप, इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, कितने हैं, अगर ये पता है तो हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन फाइंड द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी कैसे? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा. ठीक है, और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इफ इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा. अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाते हैं इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देन इट्स डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो डायमैग्नेटिक होगा.
सो यू कैन गेट, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो. मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n/n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कौन ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपीरियंस करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का. सो वी विल डिस्कस नाउ द MO for different diatomic molecules, simple diatomic molecule, and molecular orbital diagram भी हम उसका draw करेंगे. The first molecule that we are going to discuss is hydrogen. Now hydrogen हमें पता है 2 हाइड्रोजन एटम से बना है. हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. इसके कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैप करने जा रहे हैं, 1s 1s के साथ. तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक होगा सिग्मा 1s और फिर होगा सिग्मा स्टार 1s. मेरे पास टोटल में मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है. इसके पास ये 2 ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, सिग्मा 1s 2 में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग फुल हो चुका है, उसके बाद ही एंटी बॉन्डिंग फिल होता. तो बॉन्डिंग में फिल हो गया. तो this is the energy sequence. Bond order is half of Nb minus Na, which is half of bonding में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है. So 2 minus 0 is 2/2 which is 1. That means H2 में 2 H एटम के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 bond is present between 2 hydrogen atom. Now the 2 electron in this sigma 1s are paired. All the electrons are paired. No unpaired electron. So what about the nature? It's diamagnetic in nature. So hydrogen is diamagnetic in nature. अब मुझे ये ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना है. How to make this energy diagram? First of all, I'll write the energy axis. एनर्जी डायग्राम है ना मॉलिक्यूल का. फिर मुझे पता है 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करने जा रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन की एनर्जी एक जैसी है. एंड आई एम गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इतना मुझे पता है. हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है 1s जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. सेम एनर्जी पे दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. दोनों एटम के पास 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये जब कंबाइन कर रहे हैं तो एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच इज सिग्मा 1s, और हाई एनर्जी ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, सिग्मा स्टार 1s विच इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ द 2 electrons are in 1s 1s. They are going to come in sigma 1s bonding anti molecular orbital. Bonding molecular orbital में आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग खाली रहेंगे. Now this is the molecular energy level diagram for H2 molecule. You find 2 electron in bonding molecular orbital and the anti-bonding is empty. So it is telling us about the bond order, the bond strength. Single bond ही है तो ज़्यादा strength नहीं है, easily हम तोड़ सकते हैं. And also it tells us that it's diamagnetic in nature. So this is for H2 molecule. Now let's write for a helium molecule. We shall see whether the molecule will exist or not. That is He2 exist करेगा कि नहीं वो हम देखते हैं. Helium 2 यानी कि 2 हीलियम एटम से बने, हर एक हीलियम में 2-2 इलेक्ट्रॉन है. तो हीलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. एंड द ऑर्बिटल आर सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे. सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? Bond order is half of Nb minus Na, which is half of 2 minus 2, which is equal to 0. यानी कि helium 2 does not exist. So this is the reason why we tell noble gas do not form molecule, because it does not have any bond. Helium molecule बनेगा ही नहीं. Molecular orbital से bond order कितने आ रहे हैं, दोनों helium के बीच 0 bond है. That means it does not exist. Now the next example that we can take is, we can write now the molecular orbital for Li2. Each lithium, it's made of 2 lithium atom, each having 3 electrons. तो total कितने इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करने हैं, 6.
Now it is having sigma 1s, sigma star 1s, also 2s में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो sigma 2s and sigma star 2s. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर यहाँ पे फिल होंगे, फिर यहाँ पे हो जाएंगे, इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है. सो बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na. दैट मीन्स हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग कितने हैं, 2 and 2 4 और एंटी बॉन्डिंग 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1. दैट इज Li2 डू एग्जिस्ट एंड 2 Li are bonded by 1 bond. ठीक है, सो दिस इज अबाउट Li2. It will exist. Now what about its nature? All the electrons are paired, so this is also diamagnetic in nature. ठीक है, so ये Li2 हुआ. अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाना है, how will it be formed? You have the orbitals. मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख देती हूँ. एनर्जी एक्सिस है ये एक लिथियम एटम, ये दूसरा लिथियम एटम. यहाँ पे लिथियम मॉलिक्यूल बनने जा रहा है. लिथियम के पास 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. उतने ही एनर्जी पे इसी लिथियम पे भी 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कंबाइन कर कर क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग 1s एंड एंटी बॉन्डिंग 1s. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन थे. यहाँ पे लिथियम में 2s में भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन और है, 2s एक इलेक्ट्रॉन. ये कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा और एक और ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज सिग्मा स्टार 2s. और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये खाली रहेगा. So this is the case, this is the energy level diagram for Li2. You should see that the 1s have equal energy. These two have one low, one high than the earlier one. Atom से कम और ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल की एनर्जी. ऐसे 2s कंबाइन कर रहा है तो सिग्मा 2s बन रहा है और सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. सो यू हैव टू मेक द डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर मैनर. और किसका डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी एक्सेस होनी जरूरी है. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर Li2. Now the next example that we are considering is, now I am going to consider C2 molecule, carbon 2 molecule. 2 carbon atom, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन में है, तो मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे. Now what is the sequence, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz, क्योंकि 2px 2py 2pz है तो ये ऑर्बिटल्स तो सारे ही बनेंगे. पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz. देख लो इसके कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 1s 2s 2px1 2px 2py 2pz. तो 5 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो 10 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं. काउंट, यू हैव 10 न्यू ऑर्बिटल्स. नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 विल एंटर ओवर हियर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो जाएंगे, फिर 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे. 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 12 में से. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा. अभी भी फर्दर एडिशन हो सकते हैं ना हर ऑर्बिटल में. दीज आर डीजेनरेट. डीजेनरेट में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आए, फिर अब पेयरिंग होगी. अब यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 2. अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0. दीज आर वेकेंट. सो नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na. टोटल बॉन्डिंग कितने हैं, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू हैव, 8. और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 जगह आ रहे हैं, तो 4. सो इट्स 2. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. सो दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर. अब इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वी शैल मेक the energy diagram for this molecule. You have energy axis E, carbon carbon, ये C2 है, 1s 1s 2s 2s. ये कंबाइन करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. सिमिलरली ये कंबाइन करेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे.
ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 3p ऑर्बिटल, 2p, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसी तरह से यहाँ पर भी 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे बनता है पाई 2px, पाई 2py, और एक बनता है सिग्मा 2pz, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं ये 1s 2s को हटा देती हूँ। आपको सिर्फ ये बेसिकली मुझे इंडिकेट करना है, अपर वाले ऑर्बिटल्स जो थे वो हम यहाँ क्लियरली ड्रॉ करते हैं, और बाकी के तो है ही, वो तो प्रेजेंट है। इस कार्बन दोनों के पास न्यू कौन से हैं? आई जस्ट राइट ओवर योर के का मतलब इंटरनल शेल, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है 2p के, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2p के 2 ऑर्बिटल है। अब ये जब पेयर करते हैं तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर। और एक और ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो है सिग्मा 2pz। और फिर इनके एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, जिसमें बनता है पहले पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दीज हैव लेस एनर्जी, एंड देन यू हैव द हायर एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। इसका एंटी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे? पहले यहाँ फिल होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 आ गए। अब ये सारे खाली हैं। सो दिस इज द अल्टीमेट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So when you have a molecule, you can come to know the stability, you can know the feature about it, the bond strength. Now we will do for N2 molecule. N2 molecule का क्या होगा? N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं. सिग्मा 1s will have 2 इलेक्ट्रॉन, then सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, then you have electron in pi 2px, pi 2py. How many इलेक्ट्रॉन? 8 तो हो गए, 9 and 10 11 12, दो और डाल दो. देन सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए. बाकी के ऑर्बिटल मेंशन जरूर करने हैं, लेट इट बी वेकेंट है तो सही ना ऑर्बिटल, तो वो लिखो, लेट दैट बी वेकेंट. सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर फॉर N2? हाफ ऑफ Nb माइनस Na. सो कैलकुलेट इट्स हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10. So 10, and anti-bonding you have 2 and 2 4 only. So it's 6 by 2, that's equal to 3. That is N and N have how many bond? 3 covalent bond. And all are paired electrons, so it's diamagnetic in nature. So this is about the molecular orbital. With the help of molecular orbital, you can tell its bond strength. ठीक है, कंपेयर कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर को. Now the next example that I will take is O2. O2 has 16 electron and here the sequence is sigma 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, sigma star 1s, sigma 2s में 2, sigma star 2s में 2. अब यहाँ पे sigma 2pz की एनर्जी कम होती है, ये याद रखना, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. pi 2px, pi 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 2, ठीक है, बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन है. नाउ द इलेक्ट्रॉन दैट आर लेफ्ट is only 2, which would be present in pi star 2px and pi star 2py, but एक इलेक्ट्रॉन ही आएंगे. 16 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 2 14. 15th इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करा है, फिर 16, क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी कि डीजनरेट है, तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद पेयरिंग होती. तो एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो O2 का नेचर कैसा है? इट्स पैरामैग्नेटिक. और O2 में कितने बॉन्ड बनते हैं 2 O के बीच? दैट वी विल फाइंड इट्स Nb माइनस Na. Nb कितने हैं इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंड एंटी बॉन्डिंग हैज 2 2 4 5 and 6. सो इट्स 4 by 2, दैट्स इक्वल टू 2. तो 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है. तो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयनिक स्पीशीज के लिए भी हम MO का यूज कर सकते हैं. नाउ फॉर O2 वी हैव डन, ठीक है, O2 के लिए हमने निकाल लिया. अब अगर मेरे पास O2
माइनस है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मोर आई हैव, वन मोर इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो सीक्वेंस क्या होगा, 16 के लिए तो मेरे पास था, 17th इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही तो एंटर करेगा। सो आई विल हैव सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिल हो गए। अब कहाँ पर आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल है, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 2pz। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ ऑफ Nb माइनस Na। अभी भी पैरामैग्नेटिक है, बट यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ एक ही है, तो ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। कौन, O2। O2 माइनस में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा है, विच इज हियर, दिस बिकम्स पेयर्ड अप। नाउ Nb माइनस Na, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अभी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो एंटी बॉन्डिंग में हुआ, पहले कितने थे एंटी बॉन्डिंग में, इट वाज 6, नाउ यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स 3/2, दैट इज 1.5। सो इट मीन्स दैट इट हैज अ फ्रैक्शनल बॉन्ड, यानी कि पूरा डबल बॉन्ड नहीं है और पूरा सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा बन रहा है, डबल से कम बन रहा है, ठीक है। और ये O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन। और सुपर ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, विच इज लेस देन दैट ऑफ O2। तो O2 ज्यादा स्टेबल है O2 प्लस के कंपैरिजन में, O2 ज्यादा पैरामैग्नेटिक है O2 माइनस के कंपैरिजन में। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी। नाउ इफ आई एम राइटिंग O2 2 माइनस, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तब चेंज क्या आता, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, और O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता, 1। Now O2 2 minus is not it's not superoxide. O2 2 minus is called as peroxide, and peroxide is diamagnetic in nature. All the electrons are paired up. Diamagnetic है, और O2 2 minus के बीच का बॉन्ड कितना है, 1. So that is less stable. ठीक है, तो O2 2 minus का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका कम है। फिर है O2 माइनस का, और ज्यादा स्टेबल कौन है, O2। O2 is more stable because it has more bond order between the two O atom. So this is how we compare the relative stabilities, and this is the use of MOT. So MOT will tell us which molecule exists, which does not exist, like helium-2 does not exist. उसी तरह से अगर आप Ne2 का ट्राई करोगे, you will have zero bond order between two Ne atom. That means Ne2 does not exist. And magnetic character भी हमें explain होता है, relative stability, कौन सा मैग्नेटिक नेचर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज यू नीड टू नो द सीक्वेंस, द ऑर्डर, एंड देन यू कैन फाइंड द स्टेबिलिटी एंड द बेसिक नेचर यूजिंग MO, एंड MO इज द करेक्ट वन। MO थ्योरी सही बताता है, हमने सिर्फ डायटोमिक के लिए ही पढ़ना है, आगे हम नहीं डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दैट ओनली इन हायर लेवल्स। सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।